Hello my friends. Now today is a session of education, technology and ICT. Now here we will be going to discuss about the definition, meaning and scope. And please I am requesting to all my friends, please share to my all videos to your friends. After that, now you can watch anything or something on my YouTube channel. Now let's do it. Yes, here first is introduction is totally related to our the practical, that is practical theories. Okay, and here we will be the include the the maximize of the education effects, so the by the controlling such as the relevant factors at education purpose. So educational content related to total the teaching materials, education environment, conduct of students, behavior of instructor, and interrelation between students and instructor. So this is a education technology, because education is a wider role play in the social in the socio economic also. And this is also related to the practical theme. And this is a total of philosophy and the sociology, education, psychology also included to them. And the education provides it the basis of the planning, organization of the resources for a learning. So it will be help it is also the help of the achieving other teaching objectives. Now here we will introduction. Let's now next. And please don't forget the share my videos to your friends, please. Here we have many definitions. And now here the first definition accommodated by the National Academy of Engineering Instruction Committee of Education and the USA. And requesting to all also ki all you have to be write a definition to as usual on your notebook. Please do not don't change to anything on a words related to words and related to statements, because this is a definite definition. Okay, so educational technology is the body of knowledge resulting from the application of science of the teaching and learning to the real world of the classroom, together with the tools and the methodology developed to assist in these applications. So यहाँ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बताया गया है कि कैसे कि जो आपका नॉलेज है किस प्रकार से काफ़ी चीज़ों को अप्लाई करने के लिए कैसे साइंटिफिकली पर्पस से, अगर साइंटिफिकली पर्पस उसमें इन्वॉल्व होता है और उसमें जो हम कुछ रियल वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ भी सोचते हैं या कुछ भी काम करते हैं, और जब उसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा टेक्निक या हम अपना यूज़ करते हैं, अपनी टेक्निक का यूज़ करते हैं एक, और उसके साथ साथ क्या होता है हमारा जो माइंड होता है वो डेवलप होता है और हमारा नॉलेज भी बढ़ता है। तो ये क्या होता है एक तरीके से हमारा सेल्फ स्टीम भी बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन, yes, this is a by form the PC methods. The education refers to the development of the set of systematic methods with the practical knowledge for designing, operating and testing in schools. कि बेसी मैथ्स के बाय ये कहना था कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है कि सारी जितनी भी सिस्टमैटिक मैथड या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज जितने भी बच्चे लेते हैं या फिर जितनी सारी चीज़ों को नोट करते हैं इन द मैनुअली एंड दी ऑपरेटिंग या दी कंप्यूटराइज जो भी सारी चीज़ें होती हैं, यदि उनका हम सबको सम करते हैं यदि और उसके द्वारा जो उन्होंने बोला जो थ्योरी जो डेवलप होती है उसको भी हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको एज पर एज लिखनी, इसमें ये स्टेटमेंट वाइज दी गई है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन एग्जाम्स में यदि आती है तो आपको ऐसे ही लिखनी है एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, द IECT means Association for Educational Communication and Technology. Now by the task force, the USA, and now first also definition by the USA and the another third definition. Educational technology is a complex integrated process involving a people, procedure, ideas, devising, implementing, evaluating and managing solution to those problems involved to all the aspects of the human learning.
इनके द्वारा ये था कि एजुकेशन कमीशन के द्वारा जो टेक्नोलॉजी का, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे के एज अ टास्क फोर्स जो जानी जाती है, उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी लोग जो भी हर प्रकार के प्रोसीजर यूज़ करते हैं, आइडियाज़ या फिर कोई डिवाइस या मतलब जितने भी आप गैजेट्स यूज़ करते हैं उसमें कोई ना कोई चेंजेस करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, मतलब एनालाइज करते हैं, मूल्यांकन करते हैं चीज़ों का, मैनेज करते हैं उनके हर सोल्यूशन को, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकालते हैं। यदि इस तरीके से देखा जाए तो इन्होंने बोला कि ये एक्सपर्ट्स भी हैं ह्यूमन लर्निंग के, जो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को भी प्रेफर कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला यदि इस तरीके की यदि आपको चीज़ें कहीं दिखाई भी देती हैं तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। ये आपकी डेफिनेशंस। नाउ नेक्स्ट, यस, अब है मीनिंग। मीनिंग में फर्स्ट है आपका एजुकेशन। फर्स्ट एजुकेशन की ऑलरेडी एजुकेशन का मीनिंग मैं अपने कोई भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप वीडियोस प्लीज़ देखिए, मेरे सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों का और भी नॉलेज मिलेगा। इसमें है कि एजुकेशन एंड रिलेटेड टू वर्ड द एडुकॉम, इट मीन्स टू ट्रेन टू ई मीन्स फिर इनसाइड एंड एडुकॉम मीन्स द ड्रॉ आउट, सो लीड आउट टू और द ब्रिंग अप. So these terms are the probably are roots of the two word. The education is refers to process of education. So that is the drawing from within. And like now we can take up one example. The each child has is a bond. Now with him some initiate the tendency, capacities and inherent the purpose. So एक बच्चे के पास भी क्या होता है, एक सीखने की क्षमता होती है। तो ये जो एजुकेशन का जो डेफिनेशन है वो एक बच्चे की तरह ही भी बताया गया कि जैसे कि एक बच्चा होता है वो क्या करता है, सारी चीज़ों को जन्म से ही, क्या कुछ चीज़ों को वो नहीं बोलते कि बहुत सारी चीज़ों को जन्म से ही सीख के आता है, तो उसमें ऑलरेडी जो टेंडेंसी होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो इनहेरेंट पावर जो उसमें पहले से होती है। ई मीन्स मतलब उसके अंदर ही कुछ ना कुछ एक सीखने की क्षमता होती है, ड्रॉ करने की। तो अब ड्रॉ तो बच्चा कर सकता है, तो दिस इज अ कॉल्ड एजुकेशन। इट्स नॉट द एजुकेशन जब कि हम सारी चीज़ों को बहुत बड़े लेवल में डाल रहे हैं, उसको एजुकेशन नहीं कहते। एजुकेशन इज शिक्षा। शिक्षा वो शिक्षा जो कि यदि सिखाने पे जब किसी भी चीज़ को ड्रॉ करके या जो बता के हर चीज़ बताई जाती है, और लेकिन व्यक्ति के अंदर पावर यदि उसके अंदर ही हो तो वो क्या करता है, उस चीज़ को सीख पाता है, तो वो भी एजुकेशन ही होता है। तो ये एजुकेशन वर्ड है। नाउ नेक्स्ट, द वर्ड टेक्नोलॉजी। अब भाई एजुकेशन पढ़ा तो अब टेक्नोलॉजी। व्हाट इज अ टेक्नोलॉजी? इज अ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इज अ वर्ड फ्रॉम इज अ टेक्निक। इज अ टेक्निक मीन्स आर्ट एंड स्किल, कोई भी ऐसा स्किल जो हम सीख सकते हैं। आर्ट और स्किल्स दोनों एक ही होता है। किसी में स्पीकिंग का आर्ट होता है, किसी में लिसनिंग का आर्ट होता है, किसी में राइटिंग का, किसी में रीडिंग का। हर सब में हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के स्किल्स होते हैं। तो जो स्किल्स हुआ वो दिस इज अ टेक। देन लॉजिया मीन्स दी द साइंस, और जो भी ऐसी कोई टेक्निक जिसमें कि साइंस ऐड हो, जिसमें साइंस की स्टडी ऐड हो, तो वो टेक्नोलॉजी होती है। तो इस तरीके से एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इस तरीके से आपके दोनों के मीनिंग यहाँ आपको ड्रॉ होते हैं। अब मान लीजिए एक बच्चा है, टीचर के द्वारा असाइनमेंट्स मिला है। यदि हमको एक एग्जाम्पल है, एक बच्चे को टीचर के द्वारा एग्जाम्पल मिला कि असाइनमेंट्स ये मिला कि आपको विंड मीटर बनाना है, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, अपना टेक्निक लगाया। विंड मीटर का टीचर ने केवल ये सजेस्ट किया, दिस इज द पिक्चर बेटा एंड नाउ you have to be you have to be make a only one model for me, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेगा। तो एजुकेशन मतलब वहाँ एजुकेशन, उससे ड्रॉ किया पहले उसका पिक्चर ड्रॉ करने के बाद फिर उसके माइंड में आएगा कि मेरे को कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करना चाहिए। वो अपने लिए अपने अकॉर्डिंग जो मटेरियल चूज़ कर रहा है, ठीक है, वो उसका अपना अलग मटेरियल हुआ, जिसमें कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी दोनों रिफर हो रही है। और जब उसके अकॉर्डिंग, जब उस अपनी स्किल से, उसने अपने ज्ञान से उस साइंस का यूज़ करके या किसी प्रकार के ऐसी मेथड का यूज़ करके उसने बताया कि इसमें टेक्निक यूज़ हो रही है और उसने अपने दिमाग का यूज़ किया, तो यहाँ आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी समझ में आ सकती है। बच्चे जब कोई भी मॉडल बनाते हैं तो वहाँ एजुकेशन टेक्नोलॉजी आपकी टोटल इंक्लूड होती है। और नॉट है ये कि एजुकेशन ड्रॉज द सब दीज पावर फॉर द डेवलप दैम टू ऑल। सो कि हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन द ड्रॉज द पावर दे और द डेवलप दैम टू ऑल, कि लिटिल वर्ड्स में बोला जाता है कि एडुकेट एंड एडुकेयर द मीन्स ऑफ द ब्रिंग अप, सो लीड आउट एंड टू डेवलप द एक्स्ट्रा। सो इन दिस वे एजुकेशन इन मीन्स टू डेवलप the inborn qualities of a child to the fulfill, ठीक है। तो इसको आप नोट करें,
ये मीनिंग है, मीनिंग को आप और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। कीवर्ड्स आपके बहुत सारे हैं, आपको मिले इधर, कीवर्ड्स से रिलेटेड करके लिख सकते हैं। मीनिंग आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वर्ड टू वर्ड आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिस्क्राइब इस कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्कोप, इस तरीके से आता है। तो आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू द पॉइंट आपको एक्सप्लेन करनी है। तो एग्जाम में आप एज इट इज़ भी लिखेंगे तो इसमें अच्छा आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ओपन बुक एग्जाम हो, चाहे आपके वर्चुअल एग्जाम हो, जिस प्रकार से भी आपके एग्जाम हो, तो आप इसमें अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्कोप। स्कोप एजुकेशन का स्कोप किस प्रकार से लिया गया, ये ऑनली इसका 3 टाइप का प्रोसेस देख सकते हैं। फर्स्ट है टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू जनरल एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब कि जिसमें कि जनरल एजुकेशन, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन जो सारी चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेट करता है, मैनेज करता है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा एक तरीके का, इतना बड़ा एक एम्पायर होना और उसको संभालना और किसी प्रकार से उसको और उसमें सारी चीज़ों को मैनेज करना। दूसरा होता है टेक्नोलॉजी की किस प्रकार की टेक्निक यूज़ होती है, जनरल में एक एजुकेशन टेस्टिंग की एक अलग टेक्नोलॉजी होती है। फिर थर्ड है आपकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, तो इसमें एक आपकी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस यूज होती है। तो तीनों का अपना अलग अलग प्रकार होता है। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि ये इसका स्कोप है। अब स्कोप को हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं कि एक दो पर्पस के अकॉर्डिंग, दो अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से एजुकेशन का स्कोप होता है। यस, एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिए मेरा वीडियो, एंड प्लीज़ और सब्सक्राइब माई ऑन यूट्यूब माई चैनल। प्लीज़ ये भी ध्यान रखें कि आपको सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको नए नए वीडियोस और अच्छे से मिलते रहें। ये आपका पहला पार्ट है ताकि आप दूसरा पार्ट भी जल्द से जल्द आप देख सकें। जब तक आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट है आपका कि राजेंद्र के द्वारा कि 1973 में हाजर स्टेटेड इनके द्वारा दिया गया था। कुछ प्रोविंसेस हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के, हम देख सकते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, कि किस प्रकार से हमारे उद्देश्यों को एनालाइज किया जाता है, कौन कौन से उद्देश्य रखे जाते हैं, लर्निंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस चीज़ों को थीम रखा जाता है कि क्या क्या थीम में आपके जो काम होने वाले हैं। सेकेंड है आपका प्लानिंग, किस तरीके से प्लानिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग के एनवायरनमेंट की प्लानिंग की जाती है, मैनुअली की जाती है, प्रैक्टिकली तौर पे की जाती है, थीम परमस में की जाती है, जिसमें कि थीसिस वगैरह भी आपके इंक्लूड होते हैं। फिर एक्सप्लोरिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट से भी रिलेटेड क्या स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से सब्जेक्ट कि जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो किस प्रकार से एक्सप्लोर हो रहा है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन भी आपका ज़रूरी होता है। फोर्थ है आपका सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड लर्निंग मीडिया, और हाँ ये इसमें मेन चीज़ ये है कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज, आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी किस प्रकार से, मतलब जो टीचर है जब बच्चों को पढ़ा रहा है, जब एजुकेशन दे रहा है, तो वो कौन कौन से मेथड को यूज़ कर रहा है। और उसके साथ साथ लर्निंग मीडिया, कि हम सारी चीज़ों को, कि हम जो चैनल्स हैं जो हम आज के अगर हम देखते हैं तो मीडिया, मास मीडिया का काफ़ी ग्रेस है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आप उसकी स्टडी करें, लेकिन आप कुछ सारी चीज़ों को, कुछ बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हैं, क्योंकि मीडिया से भी हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। ना फिफ्थ है इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग सिस्टम। यस, लर्निंग सिस्टम का इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो यदि लर्निंग सिस्टम सही नहीं रहेगा तो हम किसी भी प्रकार की एजुकेशन टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, ये थी आपके रविंद्र के द्वारा। अब देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट, कुछ और भी बेसिक चीज़ें उनके द्वारा क्या स्कोप है। यस, इंपॉर्टेंट एरियाज विच शुड कंप्राइज। अब इसमें हम कुछ और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें और कंप्राइज हो रही हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं या इसको पॉइंट टू द पॉइंट भी लिख सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ द वेरियस द फेसेस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, के एजुकेशन के और कौन कौन से नज़रिए हो सकते हैं। आपको उस चीज़ का एनालाइज करना है, उस चीज़ को देखना है, उसका कंसेप्ट क्या है। सेकेंडली है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जैसे कि पहले वाले में भी हमने सेक्शन में देखा कि टीचिंग की लर्निंग प्रोसेस भी बहुत मान्यता रखती है, क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एजुकेशन है और टेक्नोलॉजी, ये दोनों सारी चीज़ें दोनों अलग है। दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों का जब परसेंटेज जब ऐड होता है तो हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। थर्ड है इंडिविजुअल तौर पे आपके किस तरीके से इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो होती है वो आपके किस प्रकार से अलग से ही वो चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं होता है कि आप हर चीज़ों को एक साथ करें, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी का अपना एक अलग अलग स्थान होता है ना। फोर्थ प्रोग्राम लर्निंग भी ज़रूरी है। आप एक अच्छे
मतलब जब स्कूल वगैरह में या कोई भी ऐसा प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, वो सारी चीज़ें होते हैं एक एजुकेशन पर्पज़ के, एक अलग प्रोग्राम जो होते हैं, आपको उसके बेसिस में आपको क्या सीख रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं या आप क्या सिखा रहे हैं। फिर फिफ्थ है आपका टीचिंग मॉडल्स। टीचिंग मॉडल्स बहुत आपको पर्पस है कि ज़रूरी है कि सारे टीचिंग मॉडल्स आपको आने चाहिए, तभी उसी प्रकार से फिर आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। लर्निंग थ्योरीज बतानी ज़रूरी है। इसके बाद आपकी सारी चीज़ें जर्नल है कि मल्टीमीडिया अप्रोच टू टीचिंग। मल्टीमीडिया का क्या स्थान है जब आप टीचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ उसकी क्या अप्रोच है। मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके सारे आने चाहिए। मैथमेटिक्स प्रकार से रोल प्ले करती है। फिर साइबरनेटिक्स की जिस प्रकार से कंप्यूटराइज आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उस प्रकार से एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, जैसे कि हम आगे वाले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा काफ़ी रिलेटेड है आपका ICT से, तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम साइबरनेटिक्स भी पढ़ेंगे। फिर और 10 है आपका टास्क एनालिसिस, कि आपने जो भी सारी चीज़ें करी आपको हर चीज़ का एक लिस्ट आउट, एक लिस्ट भी मेंशन करनी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको और नॉलेज मिलेगा, और भी आपके और भी आपके जितने रिसोर्सेज आप उसका भी यूज़ कीजिए। अगर आप इतना भी लिखेंगे, और आपको हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हर एक स्कोप का जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप अपने लेवल में मॉडल को, या जैसे मॉडल्स हैं, टीचिंग मॉडल्स आप ऑलरेडी पढ़े हैं, लर्निंग थ्योरीज बहुत सारी हैं, स्किल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस बहुत सारी होती हैं, तो आप उसको अपने लेवल में आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपके लिए है एग्जाम्स के लिए कि अगर एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यदि आपका क्वेश्चन आता है, मीनिंग, डेफिनेशन या इसको पूछा जाता है, तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं, और इसको आप क्वेश्चन वाइज भी अपने नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। और प्लीज़ शेयर कीजिए, और लाइक करें ना करें अलग बात है, लेकिन प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आपके साथ साथ किसी दूसरे को भी नॉलेज मिल सके। नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।